Hello guys, this is CS Shubhi Munda this side, and I know all the students who are watching may be stepping into CS executive or a CSET student or maybe planning to do CS. So I am bringing to you quick study series that is easy concepts for all the law and commerce students who are pursuing chartered accountancy course, company secretary course or a student of law and commerce. So we are going to discuss some of the very important topics on a daily basis in a very easy way. So stay tuned for the video dailies, and yes, many of them might be not getting updates. So the first thing you must do is join the Telegram channel. We have a Telegram channel link in the description box as well. The first thing you need to do is join our Telegram channel for getting daily updates on the latest videos by various Unacademy educators at this channel. Plus, if you are not aware, many students are asking how can we go for the classes in Unacademy. So you can always take the subscription. You can always go for Plus and Iconic subscription. So for now, Plus subscriptions are open, and what benefit will you get? You will get lots of live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Yes, it's not like any other pen drive where you'll get a pen drive and unlimited views. You have unlimited views of the platform, unlimited views on the app. So, as good as you operate Instagram or Facebook, the same app we provide you, that is Unacademy learning app. And yes, we'll be happy if you get addicted to it, same as Insta and Facebook. So yes, we are going to give you personal guidance, personal mentorship, study materials, notes, planners, free test series. So all this you will get only if you go for subscription. And for going for subscription, here I have mentioned about executive, but you can also go for CS executive subscription or CSET subscription. And also you can go for CSET plus CS executive together. I would suggest students who are watching, maybe you are in 12th or maybe you are approaching for CSET, go for CS, CSET and executive, because once you take the admission, once your exams are over for CSET on May, right forward you can start with the वीडियो और रिकॉर्डिंग्स विच यू कैन वॉच फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल. सो आपके एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई राइट अवे स्टार्ट हो जाएगी. यू डोंट हैव टू वेट फॉर अनदर एडमिशंस. सो डेफिनेटली आपको एग्जीक्यूटिव के भी वीडियोस दिखते रहेंगे. सो यू नो व्हाट आई फील इज कि एडमिशन लेने के बाद एग्जीक्यूटिव एंड रिजल्ट के वेट करने के बाद जो सी सेट का एग्जाम हो जाता है और जब सी एस एग्जीक्यूटिव का हमारा एडमिशन शुरू होता है, उससे बीच का जो टाइम होता है जब आप रिजल्ट का वेट करते हो, दैट इज मोस्ट क्रूशियल पीरियड वेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंडेक्स कंसेप्ट, व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू स्टडी एंड दी प्लानिंग. तो ये जो प्लानिंग है हमको बहुत अच्छे से बनाना है. उसके लिए इट वुड बी बेटर इफ यू गो फॉर सी सेट प्लस एग्जीक्यूटिव. एंड I would also tell you, you can go for 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, depending upon how you want. But the maximum duration of the courses we finish is 3 to 4 months. So I would suggest that go for 6 months or 12 months subscription, so that if you're planning for both module in June, December, you can take likewise. And yes, we have an offer for you. So if you use my code CSHUBHI, that is CSHUBHI, you'll definitely get maximum discount available. Maximum. If you have been tracking with us, we have given 22%, 20%, even we have given lots of credits back. So all this offers comes up, so you can just use my code to check whatever the discount is available, and you will be getting maximum discount. Okay, so yes, I hope you just like the channel, subscribe to the channel as well, so that you get daily notifications. You can also like and subscribe the channel and click on the bell icon to get the latest notifications. Hello everyone. As promised to you, I have brought here a very interesting discussion and a video on the paper discussion of June 2021. Why interesting? Because आरसीटी जो है वो आपके माइंड के साथ खेलता है. अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे, सो यूजुअली आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल आर कंफ्यूज, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि यार इसमें बहुत ज़्यादा केस लॉस पूछता है, बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है. बट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज सॉल्व करने वाले हैं. द क्वेश्चन जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं बिकॉज वो कंपल्सरी होता है. बट आज जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके आंसर्स सॉल्व करेंगे, गाइज यू विल रियली अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी ईजी.
और इस इतने इजी क्वेश्चंस पूछा था जून 21 के पेपर्स में. इफ यू विल सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट और कौन से चैप्टर, आई एम गोइंग टू टेल यू कौन से चैप्टर से वो रेलिवेंट क्वेश्चन है. मैं इवन आपको जो स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं जिनने मुझसे आरसीडी पढ़ा था, मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगी कि नोट्स में हमने वो चीज़ कहाँ पढ़ी थी. सो बेसिकली इट्स जस्ट यू नो द माइंड गेम. मैंने आपको हमेशा बोला है कि बिफोर राइटिंग द आंसर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कनेक्ट द क्वेश्चन टू व्हाट यू हैव रीड. ठीक है, केस लॉ देख के या बड़ा क्वेश्चन देख के डरने से बेटर है उसको रीड करो, उसको एनालाइज करो. बिकॉज द क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले रिलेटेड टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ आरसीडी जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है. 1 और 2 चैप्टर्स से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, एंड देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. So let's go with the paper. I request you be with me in the end of the video. आपके at least आज 4 topics prepare हो जाएंगे जो अभी जून 22 के लिए prepare कर रहे हैं. And just analyze how the main thing is question और answers तो आपको पता चल ही जाएंगे, but the main thing is आप लोग किस तरीके से question analyze करते हो और फिर answer करते हो. Okay, so here I have put some guideline answers for you all plus the question which has been asked in the examination. Okay, so let's start with question number 1. We are going to discuss June 21 question paper. 4 questions मैं आपसे discuss करने वाली हूँ. The reason I am not discussing the whole paper एक साथ is it would be too lengthy and I want to discuss each question in detail. That is why I am discussing question wise, so that अगर आप रोज भी मेरा एक बार ये वीडियो देखोगे तो आपके एटलीस्ट पास्ट पेपर्स के हम लोग एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि 3 साल के पेपर्स हम सॉल्व कर ले. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस एंड आई विल टेक योर 30 to 40 minutes, दैट्स इट, और उसमें हमारा पूरा पेपर डिस्कशन हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन एनालाइज व्हाट इज द एग्जैक्ट section and the chapter number for this particular question. Rahul and Rachna are husband and wife. They incorporated a private limited company in the name of RR Industries Private Limited. अगर मैं आपको इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के बताऊं, सो राहुल एंड रचना ने एक कंपनी फॉर्म किया. ओके, सो हियर उन लोगों ने एक RR Industries Private Limited फॉर्म किया. द कंपनी वाज नोन एज RR Industries Private Limited. Just see with me how simple this question is. Now, the paid up capital of the company was 50 lakh, which they have contributed equally. The shares were held by them in their individual capacity. तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर 25 lakh है, 50 lakh है तो 25 lakh each I can write for as their paid up capital. इन्हें contribute किया. Okay, this is paid up capital. Now, the company's board of directors consists of 10 directors. Rachna was designated as MD and CEO of the company. Other directors were her mother, father and 2 brothers. Rahul's father and mother were also occupying the position of director. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे position देखूँ तो Rahul is just a shareholder because directors में कौन थे? Directors consist of Rachna's mother, father and 2 brothers plus Rahul's mother plus Rahul's father. Okay, तो मिलके ये directors थे. ठीक है, and Rahul is just now a member of the company. Now let's see. The Rahul's father and mother were also occupying the position of director. Rest of the 3 directors were friends of Rachna's. Rahul's status was only as a shareholder of the company since he was engaged in the employment, occupied a good position there. वो already employment में था इसलिए वो यहाँ पे director नहीं बनना चाहता था क्योंकि already उसकी job चल रही थी और अच्छी job चल रही थी. That is why he didn't chose. और बाकी के जो 3 directors थे that was Rachna's friends. F1, Rachna's friend 2 and Rachna's friend 3. तो यहाँ पे हमको एक सिनेरियो समझ में आ रहा है. ओके, कि RR इंडस्ट्रीज में ये दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ द डायरेक्टर एंड राहुल वाज ओनली अ शेयर होल्डर. ओके, नाउ सी हाउ द केस गोज. After some time, due to some domestic issues, Rahul and Rachna got judicially separated. मतलब दोनों का divorce हो गया. After getting divorce from Rahul, Rachna expelled the mother and father of Rahul from occupying the position of directorship
from the company and inducted her relatives as directors. Rachna now started playing with the funds of the company for her personal use. राहुल अभी भी शेयर होल्डर है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे रचना ने क्या किया, रचना हैज जस्ट स्टार्टेड इन प्लेइंग विद द फंड्स ऑफ द कंपनी, और उसने राहुल के मदर एंड फादर को कंपनी से निकाल दिया और उसकी जगह अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट कर लिया. सो इफ वी सी हियर, यहाँ पे डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में सिर्फ रचना के रिलेटिव्स, रचना के फ्रेंड्स एंड रचना के मदर फादर एंड 2 ब्रदर्स आर इन द डायरेक्टर्स पोजिशन. ओके, एंड राहुल इज स्टिल दी शेयर होल्डर्स. अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है. नाउ राहुल वेंट टू फाइल एन एप्लीकेशन विद एनसीएलटी. राहुल ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है कि उसको क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी, चैप्टर नंबर 2 ऑफ आरसीडी. Whether Rahul can do so, quote the relevant provisions of the Companies Act. Now understand, ये 5 मार्क्स का इतना इजी और मजेदार क्वेश्चन है. यहाँ पे हमने क्या देखा कि राहुल इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, द सेक्शन इज सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 एंड ऑल्सो सबसेक्शन 2. इसमें हमने क्या देखा था कि अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, विच इज अगेंस्ट और विच इज मेकिंग द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स सफर्स, और ऐसे मटेरियल चेंजेस की वजह से कंपनी में कोई लॉस होने वाला है, किसी भी मेंबर को लॉस होने वाला है, तो कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है अंडर द सेक्शन 241, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ओके, मैं आपको नोट से दिखा देती हूँ. ये मैंने आपको बताया था बेटा 241 में हमने क्या देखा था. 241 में फर्स्ट, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर कंडक्टेड इन अ मैनर. पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखना है. ओके, तो मेंबर क्या कर सकता है, वो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है. कौन से केस में, अगर कंपनी के जो अफेयर्स है, कंपनी का जो काम है वो ऐसा है जिसकी वजह से इट इज दी सफरिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, हार्म हो रहा है पब्लिक को, ठीक है, या फिर ऑपरेसिव, कोई मेंबर को नीचा दिखाया जा रहा है, कोई मेंबर को हार्म किया जा रहा है, या कोई मेंबर के राइट्स सफर्ड हो रहे हैं, या इट इज कंपनीज लॉस, कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, और ऐसे कोई चेंजेस किए जाते हैं कंपनी में, कोई मटेरियल चेंज इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विच इज अगेन कंपनी के लिए लॉस है, और किसी भी मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए लॉस है. वी कैन से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और द शेयर होल्डर्स हैविंग लेस शेयर कैपिटल. इस केस में मैंने एक चार्ट आपको बना के दिया था कि देयर इज द राइट ऑफ द मेंबर्स टू अप्लाई टू एनसीएलटी. किस केस में वो कर सकते हैं, देयर इज अ कंडीशन कि वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. अगर कंपनी इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो शेयर कैपिटल था, तो यहाँ पे नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और विच इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/10, या 100 मेंबर्स, विच एवर इज, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लेस, whichever is less. So you must note here, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहाँ पे राहुल is the shareholder having 1/10 of the issued capital of the company. बस इसकी एक ही कंडीशन हमको याद रखनी है, जो भी अप्लाई कर रहा है एनसीएलटी को, जो भी एक्शन ले रहा है, उसके शेयर्स कॉल्स ड्यू अनपेड नहीं होने चाहिए. द कॉल मस्ट बी फुल्ली पेड. ओके, द कॉल मस्ट बी फुल्ली पेड. जो भी कॉल्स बुलाएगा कंपनी से वो पूरे पेड होने चाहिए, उसके बेड डेट्स, या फिर वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. अगर ही इज नॉट अ डिफॉल्टर तो ऑब्वियसली 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लेस. अब देखो, या फिर, और देर इज ऑल्सो अ कंडीशन जो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं केस से, दैट अगर किसी मेंबर के पास एक पर्टिकुलर एक मेंबर या किसी मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स या एक मेंबर्स के पास 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होगा कंपनी का, तो भी वो कर सकता है. दैट इज 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो अगर आप यहाँ पे देखो, इशूड कैपिटल में से आधा किसका है, राहुल का है, तो वो डेफिनेटली जाकर केस कर सकता है.
यस, आई होप यू कैन कनेक्ट। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ बेटा आंसर कैसे लिखना है। आंसर इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आप वो चार्ट मेंशन करोगे, मैंने मेरे नोट्स में चार्ट फॉर्म्स में दिए है, तो अगर आप ऐसे नहीं लिख पाओगे तो आप एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। दैट इज आप ये चार्ट भी बना सकते हो, इट इज इक्वल टू आंसर। दैट क्लियरली यहाँ पे मेंशन करो कि सेक्शन 241 जो है वो मेंबर्स को राइट देता है, और इट इज अंडर दैट सेक्शन की अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है अगर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 1, ऑपरेसिव हो रहा है मेंबर्स को पॉइंट नंबर 2, या फिर इट इज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के अगेंस्ट है पॉइंट नंबर 3। फर्स्ट वाला चार्ट हमने जो देखा। और अगर कोई मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक पॉइंट नंबर 1, सॉरी इंटरेस्ट ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स पॉइंट नंबर 1 एंड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी पॉइंट नंबर 2, अगर ये हो रहा है तो मेंबर जाके क्या कर सकता है, 244(1) के अंदर अप्लाई कर सकता है। ओके ओके, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आंसर का। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम लिखे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहाँ पे देखो बेटा कैसे लिखना है। इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ये सेकेंड कंडीशन है। नाउ कम्स द कंक्लूजन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी कंक्लूजन हेडिंग दो और फिर लिखो। ओके, सो देयर आर ओनली 2 शेयर होल्डर्स इन दी कंपनी, सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स है, एक रचना और एक राहुल। अब राहुल केस करना चाहता है, सो Rahul want to file an application with the tribunal. Here Rahul is having 1/2 of share capital, उसके पास 1/2 of the share, half of the share capital है। ठीक है, 1/10 से ज्यादा, अगर 1/10 भी होता तो भी वो केस कर सकता है। यहाँ पे 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल से ज्यादा है, and so he can file the application under section 241 with NCLT for seeking relief against operation and mismanagement of the कंपनी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली राहुल की जो कंडीशन है वो किस में आती है बेटा, वो यहाँ पे आ रही है। इफ यू सी जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो थर्ड हमने पढ़ा दैट इज 1/10 ऑफ द इशूड कैपिटल, ये वाली कंडीशन राहुल फुलफिल कर रहा है एंड ही कैन डेफिनेटली गो एंड अप्लाई टू एनसीएलटी। इतना इजी आंसर है। आई थिंक आपको इसको 5 मिनट्स ड्राफ्ट करने में लगना चाहिए, दैट्स इट। 5 मिनट में मैक्सिमम बोल रही हूँ, आपको 3 मिनट्स लगने चाहिए एंड द 5 मार्क्स आर योर्स। 5 मार्क्स का इतना ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन है। आई होप यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और भी कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हो, आई जस्ट रिप्लाई टू यू अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ कम्स दी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये चैप्टर पढ़ने में भी हमको बहुत मजा आया था, इफ माई स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट। इसमें हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस देखे थे, रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस थे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। फर्स्ट लेट्स गो विद द क्वेश्चन। Arun, an individual shareholders of Messrs Bell Limited, is holding 2% of voting rights. He made a complaint before AA. The investments proposed to be made by the company are without any adequate security and prayed for injunction to restrain the company for making such investments. Whether Arun will succeed in this attempt and explain with decided case law. Okay, अब यहाँ पे एक बात सुनो। यहाँ पे केस का सिनेरियो बहुत सिंपल है कि अरुण इज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी होल्डिंग ओनली 2%। बेल लिमिटेड में वो शेयर होल्डर है और उसके पास सिर्फ 2% वोटिंग राइट्स है। नाउ इन दिस केस उसको ऐसा लग रहा है कि कंपनी इज डूइंग सम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स। वेरी सिंपल केस, कंपनी जो है वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, कंपनी का एमओए उसको ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये मैंने आपको अभी एसबीसी में परसों पढ़ाया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट केस होता है, अगर कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट के बाहर, पावर के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम करती है, सो दैट इज अल्ट्रा वायरस। तो अगर कंपनी एमओए के बाहर कर रही है तो क्या मेंबर, मतलब क्या अरुण एए को वो कंप्लेन करना चाहता है तो वो कर सकता है। सो द होल क्वेश्चन इज अबाउट कैन वरुण कंप्लेन टू एए। ओके, तो हमको इसका सिनेरियो दिखाना है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, दैट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इफ यू रिमेंबर उसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ पढ़ा था
भारत इंश्योरेंस लिमिटेड एंड कन्हैया लाल। अगर आपको याद है, मैंने इसको पूरा आपको आंसर फॉर्म में दिया है नोट्स में। पावर ऑफ द कंपनी, प्लेंटिफ ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, और कंक्लूजन। आप एग्जैक्टली ऐसा ही लिख सकते हो, आप एग्जैक्टली ऐसा ही लिख सकते हो। इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था फॉस वर्सेस हार्बरटॉल, राइट। ये वाला क्या था, ये वाला रूल क्या था कि कोर्ट क्या करेगा, इंटरनल मैटर में कंपनी के इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए थे, जिसका फर्स्ट था अल्ट्रा वायरस एक्ट। इसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट या एमओए के बाहर काम करता है, इलीगल या अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करता है कंपनी के, सो इन सच केस शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो जाके एए पे एक्शन ले सकता है। यस तो यहाँ पे देखो, वेयर द डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स परफॉर्म एन इलीगल एंड अल्ट्रा वायरस एक्ट। ऑल्दो यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने इस इन्वेस्टमेंट के लिए वोट कर दी है, ऑल्दो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए वोट कर दिया है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास राइट है कि ओनली इन केस द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस या इलीगल। अल्ट्रा वायरस मतलब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में पढ़ा था, विच इज अगेंस्ट द पावर्स ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड द पावर्स। ऑब्जेक्ट में है ही नहीं कंपनी के कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो कर रहा है ही नहीं कि वो लोन दे सकता है, वो दे रहा है। so, इन दिस केस ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। ओके सो बस उसी से रिलेटेड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ, बट एक बार आप यहाँ पे केस लॉ देख लो। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको आंसर फॉर्म में ही दिया है एग्जैक्टली लिखना कैसे है। ओके नाउ सी हियर, पावर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वाज टू एडवांस द मनी into interest on the security of land, houses, machinery and other property situated in India। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि कंपनी क्या कर सकती है, मनी एडवांस कर सकती है सिक्योरिटी, हाउसेस, मशीनरी एंड अदर एडवांसमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पे। Now plaintiff, the plaintiff complained that several investments has been made by the company without adequate security and contrary to the provision of memorandum। वो एडवांस तो कर रही है बट वो सिक्योरिटी भी नहीं ले रही है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट कर रही है एंड मेमोरेंडम के अगेंस्ट काम कर रही है। prayed for perpetual injection to restrain for making it such investment। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट्स रोको, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर फॉस वर्सेस हार्बरटॉल बोल रहे हैं कि इंटरनल मैनेजमेंट है तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, सॉरी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट इंटरफियर करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द मेमोरेंडम। तो बात ही खत्म हो जाती है। द कोर्ट ऑब्जर्व इन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट द कंपनी इटसेल्फ is the best judge of its affairs and court should not interfere। लेकिन but the application of assets of a company is not a matter of internal management as directors are acting ultra virus। पूरा खेल किसका है? ultra virus का। in the application of the funds of the company a single member can maintain a suit। इसीलिए एक single member भी क्या कर सकता है? केस कर सकता है। it means the rule of Foss versus Habertal will operate in full force only when majority of shareholders through their chosen directors act with extents of the powers। मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर अगर वो काम करेंगे तो ही वो वैलिड है। इसीलिए इस केस में अरुण क्या कर सकता है? अरुण केस कर सकता है, ठीक है। इससे बेटर मैंने आपको तरीका बताया है कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप केस लॉ मेंशन कर दो एंड एट द एंड यहाँ पे आप कोर्ट का ऑब्जर्वेशन दे दो एंड हेंस यहाँ पे लिख दो इन द गिवन केस अरुण विल सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट। क्लियर है? बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आई होप अभी आपको लर्न हो गया होगा। ओके बिकॉज सी the most important thing why I am discussing this is because resolution of corporate disputes में बहुत काफ़ी सारे हमने केस लॉस पढ़े हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैटर्स हमने पढ़े हैं, बट इसको प्रेजेंट कैसे करना ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको मजा आना चाहिए। सी अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो द लॉजिक यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय। सो डेफिनेटली टीचिंग इज वन पार्ट, लर्निंग इज वन पार्ट, बट गेटिंग द लॉजिक, गेटिंग द इंटरेस्ट इज अनदर। तो वो आपको खुद लाना पड़ेगा बिकॉज अगर आप लर्न करने के बेसिस में, नॉट ओनली इन माई सब्जेक्ट्स बट इन एवरी सब्जेक्ट इन फुल CS सिलेबस, अगर आप बेटा सिर्फ लर्न करने के मोटिव से पढ़ोगे तो आप कभी सक्सीड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लॉजिक से पढ़ोगे तो आप कभी ये भूलोगे भी नहीं। ओके नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन अगेन फॉर 5 मार्क्स। नाउ सी अगर आपने ऊपर के 2 क्वेश्चन लिख दिए तो आपको 10 में से मिनिमम मैं बोल रही हूँ अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया तो 8.5 9 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं 100%।
Now see the third question. What is the third question? The Registrar of Companies Mumbai sent an order to Messrs LRM Container Services Limited that it would conduct investigation relating to financial matters. ROC के पास right है कि वो कोई भी matters पे क्या कर सकता है, कोई भी matters पे investigate कर सकता है. तो उसने Messrs LRM को बोला कि मैं आपके investigation करूँगा particular कौन से department में, finance department में, financial matters पे. Okay? इसके बाद क्या हुआ? The management of the company internal discussions terminated its finance head and 3 more employees of the finance accounts department as they were in charge of department of the company during the set period. अब 2016 से 19 तक करना चाहता है ROC इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो भी पर्सन्स थे उनको कंपनी ने क्या कर दिया है, ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिया है. ठीक है. नाउ comment on the action of management of the company quoting the relevant provision of the Companies Act. Now if you remember, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था. चैप्टर नंबर 5 में रेगुलेटरी एक्शन में इसका नाम था पावर ऑफ प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज. क्या कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाहर निकाल सकती है? द आंसर इज नो. इफ यू रिमेंबर सेक्शन 218, if you remember section 218, if you remember हमने रेगुलेटरी एक्शन, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए थे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेक्शन 218 बोलता है अगर कंपनी को किसी एम्प्लॉय को निकालना भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको NCLT से अप्रूवल लेना पड़ेगा. अगर NCLT 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं करते, इन केस NCLT इज नॉट रिप्लाइंग, सो ही कैन टेक द एक्शन. बट अगर NCLT का डिसीजन आ गया है तो आप नहीं निकाल सकते. अगर आप ऑब्जेक्ट करते हो NCLT का डिसीजन तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आप 30 डेज के अंदर उनको भी वापस अपील कर सकते हो. बट आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पूरी कंपनी में, सपोज किसी कंपनी में किसी भी पर्टिकुलर चीज पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस टाइम पीरियड में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप किसी एम्प्लॉयज को निकाल नहीं सकते. लॉजिकल चीज है, राइट? बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज अभी वो कंपनी किस में है, सर्च एंड सीजर में चल रही है. इसीलिए NCLT का आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ओके, बस इतना ही सिंपल सा ये केस है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, राइट? एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं. नाउ सी, सेक्शन 218 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के अंडर आता है ये. इसका मेन इज प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. इस नाम से आपको मेरे नोट्स में भी और मॉड्यूल में भी मिल जाएगा. During the course of any investigation, during pendency of any proceeding against any person, या तो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई रेगुलेटरी एक्शन, मतलब कोई ROC, सेबी, कोई भी बाहर की अथॉरिटी का इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. सो अदर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन शेल नॉट डिस्चार्ज और सस्पेंड और पनिश. ना तो वो निकाल सकते हैं, ना सस्पेंड कर सकते हैं, ना पनिश कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को without approval of NCLT. This is protection for employees. इसीलिए इसको बोला जाता है protection to employees. Okay? The protection is available during the investigation of the affairs or other matters relating to company. Any body corporate or person or membership ownership of shares or debentures. Following action may not. क्या नहीं कर सकती कंपनी अप्रूवल के बिना? किसी मेंबर को डिस्चार्ज नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है? किसी एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर सकती, चाहे वो रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, अदरवाइज उसको डिमोट कर दिया, प्रमोशन नहीं दिया, या उसकी सैलरी कम कर दी, या उसको रिमूव कर दिया कुछ दिनों के लिए. आप ये सब नहीं कर सकते. टू चेंज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हिज डिसएडवांटेज, उसकी टर्म्स चेंज कर दी, राइट? ये सब आप नहीं कर सकते. अगर एप्लीकेंट को 30 डेज में रिप्लाई नहीं मिला, मतलब सपोज कंपनी ने NCLT से अप्रूवल मांगी, NCLT ने 30 डेज में रिप्लाई नहीं किया, फिर वो कर सकता है. Only then the applicant concerned में proceed to take action against the employee. तो फिर वो, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अगर 30 डेज में रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप कर सकते हो. ओके, नाउ सी,
If the applicant is dissatisfied with objection raised by NCLT, अगर उसको लगता है कि नहीं NCLT ने गलत डिसीजन दिया है, तो वो 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन उठा ऑफ द नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शन एक अपील फाइल कर सकता है टू अपेलेट ट्रिब्यूनल. ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, अगर उसने डिसीजन दिया तो आप 30 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो. किसको करोगे आप, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल. NCLT को आपने अप्रूवल मांगा, उसके डिसीजन से आप ऑफेंड हुए, उसके बाद आपने अपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील किया. ओके ओके. और जो अपेलेट ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा, द डिसीजन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑन सच अपील shall be final and binding on the parties concerned. Okay, hence in the given case management should not outrightly terminated the concerned head of finance department and its employees. The company should have sought the prior approval of NCLT. इस केस में ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है. भले आप प्रोविजंस लिख दो, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, भले आप प्रोविजन लिख दो, लेकिन प्रोविजन लिखने के बाद आपको कंक्लूजन, इसीलिए जो आपको क्वेश्चन पूछा है लिखना बहुत जरूरी है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आई हैव सीन द चेक्ड पेपर्स, और उसमें बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हमने पूरा लिख के आया बट मुझे आंसर नहीं मिला. मैंने बोला चेक शीट लेकर आओ. उन्हें चेक शीट बुलवाई. आफ्टर 15-20 डेज दे शो मी द शीट. उसमें उन्हें ये पूरा लिखा, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोविजन लिखा, बट दे आर नॉट राइटिंग द कंक्लूजन. तो वही तो हमको क्वेश्चन पूछा है ना कि इस केस में क्या होगा, क्या कंपनी उसको एक्सपेल कर सकती है. सो यहाँ पे वी हैव टू राइट नो. Okay, so hence in the given case management should not rightly terminate the concerned head of finance department and its employees जब तक कंपनी क्या नहीं कर लेती, prior approval of NCLT नहीं ले लेती. The company may establish an internal inquiry committee pursue such report. The recommendation of committee should be pursued before NCLT for punishment and termination in the involvement of staff in this matter. अगर कंपनी को लगता है कि ठीक है स्टाफ का प्रॉब्लम है या किसी एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, आप कमेटी बैठाओ, आप NCLT को बोलो, NCLT will take the action और NCLT will give the approval, बट आप खुद का डिसीजन नहीं ले सकते. क्यों मैम, कंपनी है, कंपनी तो खुद का डिसीजन ले सकती है, लेकिन अभी कंपनी में कौन है, NCLT है, अभी कंपनी में ROC है, ROC क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. तो अभी द कंपनी इज अंडर द आई ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसीलिए आप खुद का डिसीजन नहीं ले सकते. एज सिंपल एज दैट. एंड दस द एक्शन ऑफ LRM कंटेनर सर्विसेज इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 218. आप आंसर लिखने का भी तरीका देखो प्लीज. यहाँ पे आप इसके साथ साथ बेटा आंसर लिखने का भी तरीका देखो कि आंसर किस हिसाब से लिखा जाता है. यस, बिकॉज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एग्जैक्टली आंसर लिख सकते हो. सी द लाइन, हेंस द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ LRM कंटेनर सर्विसेज इज इन वायलेशन ऑफ 218 इज अ स्ट्रॉन्ग लाइन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ हमने 15 मार्क्स का सॉल्व किया एंड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बोला RCD ना आपके माइंड के साथ खेलता है. क्यों, क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट थे, बस उसको इनडायरेक्ट तरीके से केस लॉ के तरीके से पूछा गया है. दैट्स इट. ओके, कमिंग टू द लास्ट एंड अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज Raghunath was the general manager in a company named as Impex Overseas Limited during the period 1st January 18 to 31st March 20. He retired from the services of the company at the close of business on 31st March 2020. अब यहाँ पे एक बार हम लिखकर देख लेते हैं सिनेरियो कि रघुनाथ was the general manager of the company. ओके, कब से कब तक था, 1st January 18 to 31st March 20. Okay, now he retired from the services of the company at the close on the business on 31st March. अब ये रिटायर कब हुआ, retired, facts देखना बेटा. हाँ, these are the facts of the cases. Retired on 31st March 20, of course उसका जो ending period था, ठीक है. इट वॉज रिवील्ड दैट उसके टेन्योर के ड्यूरिंग, मतलब जब वो काम कर रहा था तब कंपनी ने कुछ, वो कहाँ पे था, वो जनरल मैनेजर था फॉरेक्स में, तो ऑब्वियसली फेमा के अंडर था. तो यहाँ पे कंपनी ने ऑब्जर्व की कि इसके टेन्योर के टाइम फेमा में कुछ कॉन्ट्रावेंशंस हुए हैं, मतलब कुछ रूल्स तोड़े गए हैं. ओके ओके, सी later on it was revealed that during his tenure
the company has contravened some of the provisions of FEMA and this happened to non-compliance on the part of रघुनाथ. कौन रिस्पॉन्सिबल था उस टाइम पे? जो था ऑब्वियसली कौन था? रघुनाथ था. ओके आपको तुरंत सेक्शन क्लिक होना चाहिए बेटा. ये मैंने आपको फिर से, ये चैप्टर 5 का है, आपको याद होगा हमने फेमा के अंदर, फेरा के अंदर प्रोविजंस पढ़े थे. तो 42 सेक्शन नंबर में हमने ये पढ़ा था. अभी हम देखेंगे नोट से. नाउ सी द कंपनी आस्क्ड रघुनाथ to pay the penalty, but he denied and told that he is now not in service of the company and company itself. रघुनाथ को बोला गया पेनल्टी पे करने, रघुनाथ ने बोला दफा हो जाओ, मैं कंपनी का पार्ट नहीं हूँ. तो उसको क्या बोला गया? तो हमको एडवाइस करना है कंपनी को लीगल प्रोविजंस अंडर फेमा इन दिस रिगार्ड कि क्या रघुनाथ लाइबल है. अगर उसने उसके टेन्योर में कॉन्ट्रवेंशन किया है तो इज ही लाइबल, या उसका टेन्योर खत्म हो गया है तो इज ही नॉट लाइबल. सो ये आंसर यहाँ देखने से पहले मैं आपको मेरे नोट से बता देती हूँ. इफ यू रिमेम्बर ये हमने पढ़ा था, दैट इज सेक्शन 42. इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और हमको पता चलता है कि कंपनी में कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो जो पर्सन वहां इन्वॉल्व था, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी ऑफिसर हो कंपनी का, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी उस पीरियड के लिए. उस पीरियड के लिए तो वो रिटन एविडेंसेस में था वहां पे. ओके तो इसीलिए रघुनाथ विल बी लाइबल. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. यस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ. ओके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42(1) of Foreign Exchange Management Act, where a person committing a contravention of any provision of the said act, direction or order made thereunder, every person, अगर वो उस टाइम पे वहां था, every person at the time of contravention committed in charge of was responsible to the company for the conduct. अगर इस बीच में, डेफिनेटली इसके बाद या पहले होगा तो रघुनाथ इज नॉट लाइबल, बट पेपर्स में रघुनाथ इज द जनरल मैनेजर और वो टीम में था, इसीलिए वो भी इक्वली लाइबल है. एज सिंपल एज दैट. क्लियर? यहाँ पे देख लो, he shall be deemed to be guilty of contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Nothing contained in this subsection shall render any such person liable to punishment if he proves that contravention took place without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent such contravention. यहाँ पे कोई भी पर्सन वो पनिशमेंट में अगर वो प्रूफ कर देता है कि यू नो नहीं, उसका नॉलेज नहीं था या जो भी था, इट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, बट अगर ऑब्वियसली ही इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, तो फिर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी, बट दैट इज अनदर केस. ओके और सेक्शन 42(2) क्या बोलता है? अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन किसी भी पर्सन ने किया है उसके प्रेजेंस में, सो ही इज लाइबल. चाहे जैसे अभी मैंने आपको बोला, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो या कोई भी ऑफिसर हो कंपनी का, he will be guilty of the contravention and liable to be proceeded against, punished accordingly. Okay, इसीलिए the main answer is here. The main answer is here. इसीलिए what is the conclusion? ध्यान दो यहाँ पे. What is the conclusion? Thus, as per the above provisions, since Raghunath was in charge of Forex division at the time of occurrence of the contravention and it happened on account of his negligence, वो वहाँ पे था और उसकी नजरअंदाज की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से अगर ये चीज हुई है, so he is liable with the company to be proceed against and punished under the provisions of. क्लियर? इजी, कुछ भी यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है. एंड अकॉर्डिंगली रघुनाथ शेल बी लाइबल टू पे द पेनल्टी. बेटा मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, जरूर लिखना कंक्लूजन, उसके बिना आपको कंक्लूजन इंक्लूड्स 2 marks ऑफ द आंसर्स, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. Leviable on him by the appropriate authority. However, as regards the penalty leviable separately on the company, the same cannot be recovered from रघुनाथ. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सपोज रघुनाथ की वजह से सपोज 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है, तो उसमें से रघुनाथ को लगा है 20 lakhs का, ठीक है, तो बाकी के 80 lakhs कंपनी देगी. कंपनी नहीं बोलेगी नहीं तेरी वजह से हुआ, तू दे. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. कंपनी की अलग पेनल्टी होगी, रघुनाथ की अलग पेनल्टी होगी, एक्सेप्ट in accordance with the terms of his employment agreement, because section 42 clearly holds the company as well as separately liable for the penalty. Company separately liable है and रघुनाथ separately liable.
सिंपल सिंपल। ये भी 5 मार्क्स का था। तो ऑलमोस्ट हमने 20 मार्क्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी से क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए विथ माय नोट्स। सो आई होप आपको पढ़ने में भी मजा आए और एटलीस्ट आपको पास्ट आंसर्स की हमारी, आई एम डेली गोइंग टू अपलोड दिस वीडियोज ऑफ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ पास्ट 3 years एटलीस्ट। December 21 का भी मैं लेकर आने वाली हूँ। सो जस्ट बी विथ मी, गिव मी डेली और 30 to 40 minutes और हम सिर्फ पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट एटलीस्ट आपके पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एंड द मेन थिंग इज हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर एंड हाउ टू प्रेजेंट द questions. If you have not yet joined the Telegram channel, you must join the Telegram channel. Just a second. Yes, the link you will get also in the description box. You will get all the updates related to CS coachings of all levels, and you will be updated with lots of free notes, lots of daily updates. And if you take the subscription, if you take our plus subscription, you will definitely get more benefits. We are taking weekly tests, many more special classes, many live classes in which you can even speak to us. And for taking the subscriptions, there are certain offers. You can take it for 3 months, 6 months, 12 months, or 24 months, and you also have a discount. So, if you use my code CS Shubhi, you get maximum discount. So, all the best, and I hope you like the video. Do press the bell icon for getting the latest video notifications. Like and subscribe to the channel for getting daily updates. Thank you so much, guys. Bye bye.